سے اسلام آباد کی طرف چل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں۔ پارٹی پرچموں کی بہار، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، جیالے پرجوش۔ مختلف شہروں میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ لانگ مارچ کے شرکاء کا 8 مارچ کو پاکستان پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے اسلام آباد کی جانب چل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں۔ پارٹی پرچموں کی بہار، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، جیالے پرجوش۔ کراچی میں مختلف شہروں میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ لانگ مارچ کے شرکاء 8 مارچ کو پاکستان پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے اسلام آباد کی جانب چل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز ہوا۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں۔ پارٹی پرچموں کی بہار، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، جیالے پرجوش۔ کراچی میں مختلف شہروں میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ لانگ مارچ کے شرکاء 8 مارچ کو پاکستان پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے اسلام آباد کی جانب چل پڑی۔ پیپلز پارٹی کے وفاق حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا مزار قائد سے آغاز۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا عوامی مارچ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نالائق نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے حق پر ڈاکہ مارا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے۔ سلیکٹڈ نے آپ کے ووٹ اور جیب پر ڈاکہ مارا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ قائد عوام اور شہید بے نظیر کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے۔ عمران نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انسانی حقوق پہ حملہ کر چکا ہے۔ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ کی ساتھ کا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کو بحال کریں گے۔ ہم فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے انہوں نے اپنی ایک دکان چمکائی ہوئی ہے کہ ذرا لوگوں اپنے لوگوں کو نعرہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے۔ ان کا جو مارچ حکومت سے روکے گی یا فری ہینڈ دے گی؟ نہیں، فری ہینڈ دیں گے، بلکہ ان کے مارچ کے جو حالات ہیں بندے بھی ہمیں دینے پڑیں گے۔ بندے نہیں کر رہا وہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ ایک پیپلز پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ کھوتا ریڈی پہ جڑی آ رہی ہے، وہ دیکھا نہیں یہ سارے انہوں نے اس طرح ہی کرنا ہے۔ میں نے حالانکہ ان کو کہا تھا کہ ہم دے دیں گے گھوڑے، اونٹ، گدھے جو کہیں گے ہم دے دیں گے۔ جہانگیر ترین اور چودھری برادران کے سلسلے میں کیا ہے کہ وہ مکمل حکومت کے ساتھ ہیں یا تھوڑا بہت کوئی؟ نہیں، حکومت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترین صاحب کی طبیعت تھوڑی جو ہے وہ خراب ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ ابھی لنڈن گئے ہوئے ہیں، واپس آ کے وہ حکومت کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چودھری برادران کی جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگلی سیاست کو سامنے رکھ کے، اگلے معاملات کو سامنے رکھ کے۔ یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ کون جائے گا جن کا یہی نہیں پتا کہ ان کا وزیر اعظم کون ہے، ان کا لیڈر کون ہے۔ 8 گھنٹے میں نے کہا 8 گھنٹے شہباز شریف کو بنا دیں، 8 گھنٹے فضل الرحمان کو بنا دیں، 8 گھنٹے جو ہے وہ شہباز شریف کو بنا دیں، اور بلاول اور مریم چونکہ بچے ہیں ابھی ان کو 4 گھنٹے کے لیے دے دیں تاکہ یہ سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں۔ یہی طریقہ ہے، یہ انہوں نے اسی طریقے سے اکاموڈیٹ ہونا، اور انہوں نے کیسے اکاموڈیٹ ہونا۔ سر روس کا دورہ کیسا رہا آپ کا؟ روس کا اور دورہ کیا معاہدے ہوئے ہیں اس میں؟ کچھ پاکستان کی مفاد یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ کو خارجہ پالیسی آزاد لگی ہے کہ نہیں لگی؟ لگا ہے کوئی شیر دا پتر گیا ہے کوئی، یہ تو سارے اپنا کبھی ایک فون آ جاتا ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرا فون آ جاتا ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ عمران خان ایک تگڑا بندہ ہے، اسی لیے میں دیکھیں ہمیشہ یہاں پہ بھی میں آپ سے بات کرتا تھا کہ قد والے بندے کو لیڈر بناتا ہے۔ یہ عمران خان یہ سارے ملک کی عزت ہوئی ہے،
किस तरह सारे जो है वो रूस में लोग निकले हैं, सब किया। तो इंशाल्लाह ताला देखिए, हमने अपनी खारजा पॉलिसी बनानी है अपने मुफाद के मुताबिक। ये लोगों को जिनके पैसे बाहर हैं उन्होंने भी होश होए पे क्यों रूस कितने चला गया है, साड़ियाँ प्रॉपर्टियाँ उधर हैं, पैसे उधर हैं, इनकी क्या है, इन्होंने कौन सा दोबारा इंशाल्लाह इन्होंने आना ही नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने इनकी सियासी कब्र हमेशा के लिए खोल दी है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में पाकिस्तान का क्या रोल है? इसमें कोई मसलियत का है या खामोशी है? लेकिन बात यह है कि हमारा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा से एंटी वॉर रहे हैं, और आपने बयान भी देखा होगा, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो उन्हें अफसोस है कि ये जंग शुरू हुई है। बाकी ये अपना इस वक्त एक आलमी मसला है, और पाकिस्तान जो है उसका किरदार हमेशा अमन के लिए रहा है। हम आगे बढ़ने चाहते हैं और हम चाहते हैं अपने दो मिसाइल। आप देखें ना, दुनिया जो है वो सिकुड़ गई है। अब ये जो वहाँ पे हुआ है यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, हमारे यहाँ तेल की कीमतें देखें ऑलरेडी इतनी चली गई हैं। दुनिया में इस वक्त तेल की कीमतें $100 पे पहुँच गई हैं। गंदम, दुनिया की 40% गंदम जो है वो रूस और यूक्रेन पैदा करते हैं। उसकी वजह से गंदम की कीमतें ऊपर चली गई हैं, गले की कीमतें ऊपर चली गई हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक मामला जो है वो जरा ठंडा हो, ताकि ये चीजें कीमतें वापस आएं। यूक्रेन में जो पाकिस्तान फंसे हुए हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए इकदाम किस हद तक करते हैं? उनकी वापसी के लिए तसल्ली बख्श इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। इंशाल्लाह किसी पाकिस्तानी को वहाँ पे तकलीफ नहीं पहुंची है, और सारे पाकिस्तानी राब्ते में हैं, और पोलैंड जो है पोलैंड से इंशाल्लाह वापस आएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के जो हालात हैं इनको अपने बंदे गिनने पड़ेंगे। इनको अभी तक यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन होगा। 8-8 घंटे सभी को वज़ीर आज़म बना देंगे। पहली दफा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद लगी। लॉन्ग मार्च में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया, बंदर बाट कैसे होनी है। शेख रशीद का कहना था कि सारे मफाद परस्त इकट्ठे हो गए हैं, लॉन्ग मार्च को पूरी सिक्योरिटी देंगे। इमरान खान इन पर सियासी साइबर अटैक करेगा। अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे। मुझे पूरा यकीन है 23 को ये नहीं आएंगे, आपके 12 बंदे उड़ जाएंगे। पूरी सिक्योरिटी देंगे जनाब, कोई रुकावट नहीं होगी आपके लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि 23 मार्च को ये नहीं आए। एक तरफ आप अदम एतमाद ला रहे हैं। देखिए ना, आप तो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाने जा रहे हैं, और मीडिया के डब्बे से निकले 2 महीने तक उसमें फंसे हुए हैं लोग। लोगों को कोफ्त हो रही है, लोगों को अजियत हो रही है कि जो कटी कट्टा निकालना है वो निकालें। आपके बस का रोग नहीं है, आपके बस का रोग नहीं है। 77 की निजाम मुस्तफा की तहरीक का क्या निकला आपको पता होना चाहिए, और किसी को पता ना हो पता हो, फजलुर रहमान साहब को पता होना चाहिए। 1980 की तहरीक का क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए, और फिर MRD का नतीजा क्या निकला ये आपको क्या पता होना चाहिए। 90 की तहरीक निजात मेरा आइडिया थी, मैं लेके निकला, उसका नतीजा भी क्या निकला, ठुस। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सिंध हकूक लॉन्ग मार्च का आज दूसरा रोज। तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च कराची की तरफ गामजन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध हकूक मार्च से खिताब। तीर को तोड़ना है और सिंध को जोड़ना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। पीपल्स पार्टी भुट्टो के हाथ से निकलकर जरदारी के गिरफ्त में आ चुकी है। सिंध में लसानियत और फिरका वारियत को हवा दी गई है। सिंध में भाई को भाई से जुदा किया गया। आज जरदारी की सियासत आम हो गई। आज सिंध के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। मैं 2013 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। मैं 2018 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया, और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं और बरमला कहना चाहता हूं, पीर साहब पगारों ने मेरा साथ दिया। शिकारपुर वालों, मैं आज तुमसे शिकारपुर की धरती पे खड़े होकर पूछना चाहता हूं, आगा सिराज दुरानी के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या गुनाह है?
उसने क्या कसूर किया है? उसको सिंध का स्पीकर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया या तहरीक इंसाफ ने मुंतखब किया? अगर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया तो आज आगा सिराज दुरानी की शिकारपुर में क्या हैसियत है, क्या कैफियत है? अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने शहरियों को सेहत कार्ड नहीं दिए। सिंध के अस्पतालों और स्कूलों का बुरा हाल है। अगले साल सिंध में पीटीआई हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मैं सिंध के हर गांव हर तहसील में जाऊंगा। आसिफ जरदारी ने मुंशी को वज़ीर आला बना दिया। सरकारी अस्पतालों में ये अपने जानवरों का इलाज नहीं करवाते। चोरों से निजात का वक्त आ गया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट लॉजेस आमद। मौलाना फजल रहमान की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात हुई। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत की गई। सराय के मुताबिक पीडीएम के महंगाई मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। भारतीय गुरूर को खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के आज 3 साल मुकम्मल। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय भी पिलाई, जज्बे खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले भी कर दिया। भारत को हमेशा फैंटास्टिक टी याद रहेगी। दिल का दर है खुदा बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान, दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सतरंग है। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था। 3 साल कबल 27 फरवरी को बालाकोट में रात के अंधेरे में भारतीय जारियत का शाहीनों ने दिन के उजाले में दिनदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी पर भारतीय तैयारा मारा गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने तबाह होने वाले जंगी जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और पाकिस्तानी हदूद में गिरा। पाकिस्तान के शाहीनों ने पायलट को चाय पिलाई जो फैंटास्टिक टी के नाम से मशहूर हुई, जबकि पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले कर दिया गया। इस मार्के से मंसूब पाक फिजाइया की जंग गैलरी में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में अभिनंदन के जेर इस्तेमाल यूनिफॉर्म और जंगी हवाबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान दुश्मन की पसपाई की दास्तान सुना रहा है। गैलरी की एक दीवार पर अभिनंदन के तैयारे को मार गिराने वाली विंग कमांडर नोमान अली खान, भारत के दूसरे जहाज को मार गिराने वाले स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी, जबकि भारत के खिलाफ अहम मिशन में शामिल ग्रुप कैप्टन फहीम खान की तस्वीर अवैजा है। 27 फरवरी को पाक फिजाई की जुर्रत का यह पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगों के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दुश्मन मुल्क के हवाबाजों को नाकों चने चुबाने और इनेकारी जर्ब लगाने की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क अपनी कौम की सलामती के लिए पुरज़म और गैर मुतज़िल हैं। 27 फरवरी 2019 को भारत को साबित करके दिखाया कि मुज़ाकरात को कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात को कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। हमने 27 फरवरी 2019 को भारत को साबित करके दिखाया जब इसने हमले का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि कौम की हिमायत से हमारी मुसल्लह अफवाज हर सतह पर जारियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। 27 फरवरी को भारत की नाकाम जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान भारतीय फिजाइया के 2 तैयारे मार गिराए। पाक भारिया ने भारतीय अबदोज का सुराग लगा लिया। मादरे वतन की हिफाजत के लिए आज का दिन पेशावराना सलाहियतों और अज़म का मुंह बोलता सबूत है। असला और तादाद में ज्यादा होना नहीं, सिर्फ कौमी अज़म और पेशावराना तैयारी से ही कामयाबी मिलती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त धरने से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो कभी दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर था,
اب دنیا میں آلودگی کے لحاظ سے، ماحولیات کے لحاظ سے گندا ترین شہر بن گیا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ بلیٹن میں آگے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روز نیوز۔